Hello everyone. As I mentioned earlier, today we'll be doing something other than mathematics, that is reasoning. Okay. And with this, we'll be starting today blood relation. Okay. So let's begin. Now, see, this blood relation topic is very important. Why it is important? Because let's see in what exams you can see the questions of blood relations. Okay. So first of all, you will see the in any college entrance examinations, you will have blood relation questions. Any government examinations, government recruitment examinations, you will have these questions. Any private institution like private companies, they have their quants and reasoning section, so they will also have this blood relation type questions. Okay, now let's talk about CA Foundation, CS Foundation. In fact, in state PCS, UPSC level examinations, bank exams, and these are quite few exams about which I've just told you, but in reality there are a lot of examinations about on in which blood relation questions are asked. Okay, so right, today we'll start how to do blood relation questions. Okay, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Okay, so first of all, let's try to understand what do we mean by blood relation. In simple भाषा में कहूँ खून का रिश्ता, but that doesn't mean कि खून के रिश्ते दिखाने. हम यहाँ पे जितने भी रिश्ते हम पढ़ते हैं उन सभी रिश्तों को हम यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो तो पहले टाइप का जो हमें क्वेश्चन होता है वो होता है डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन. डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन. डेटा ओरिएंटेड मीन्स कि आपको बहुत सारा डेटा दे रखा होगा. ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, सी समथिंग टू डी, एफ इज समथिंग टू ए एंड सो ऑन. ठीक है, और उस डेटा से आपको एक चार्ट तैयार करना होगा और उस चार्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस बताने होंगे. नेक्स्ट, जिन्हें हम कहते हैं वन लाइनर्स. ठीक है, वन लाइनर्स आर बेसिकली पॉइंटिंग टू अ मैन. राम सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई ओनली सन. हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट मैन. ठीक, सो इस तरह क्वेश्चन. पॉइंटिंग टू अ किड प्लेइंग इन द पार्क, द लेडी सेड दैट किड इज माई फादर्स ओनली सन. Okay, so how is that kid related to Seema or the lady, whatever the name? So these are called one liners. And the third one is coded blood relations. Coded blood relations. Now we will be covering each and every type of blood relation question one by one. Okay, so today we will be starting with data oriented blood relation questions. Now guys, whether you are giving any exam, as I already mentioned over there, और इसके अलावा भी अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, this video is very useful because इस वीडियो में या इस पूरे सेट में मैं आपको डेटा और ब्लड रिलेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. I'll be giving you different questions. We'll be discussing the way to solve them. So guys, please बने रहिएगा साथ में. And I hope you find this video helpful. Okay, so let's start with data oriented type questions. Okay, now for data oriented, first of all let's understand, in order to make chart, हमने जैसा कि बताया कि मैं आपको चार्ट बनाऊंगा, तो चार्ट बनाते टाइम हमें यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान देनी है. If we have to mention of male, okay, let's say A is a male, so what we'll do, we will simply put a plus sign above the person. Okay, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में एन आयन कैटायन बनाते थे ना, उस तरह से कुछ ऐसा करेंगे. तो प्लस साइन, दैट मीन्स दिस डिनोट्स दैट ए इज अ मेल. प्लीज यहाँ पे कोई फीम, एंड देन फॉर फीमेल लेट्स से कि इफ ए इज फीमेल, तो हम उसके ऊपर एक माइनस साइन डिनोट कर देंगे. ठीक है,
when I used to prepare for the exams, I used to put this sign convention, so it became easy for me. किसी को अगर माइनस साइन से मेल डिनोट करना है तो वो मेल डिनोट कर सकता है, किसी को प्लस साइन से फीमेल डिनोट करना है वो फीमेल डिनोट कर सकता है. ओके, ये मैं इंडिविजुअल पे छोड़ देता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल साइन कन्वेंशन के बेसिस पे प्लस से हम मेल डिनोट करते हैं, माइनस से हम फीमेल डिनोट करते हैं. नाउ इफ वी हैव टू शो द मैरिज बिटवीन two people, right? So we use double bond, okay? Like double bond in chemistry, okay? So we are using double bonds. This means that A and B are married. Now, next concept, if we have single bond between A and B, that means A and B are siblings. What is sibling? Sibling means your real brother or sister. That means, let's say कि you are a child of your parents and then your parents have another child. Then that child and you are sibling. Okay? भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन और बहन भाई. तो बेसिकली ये हमारे सिबलिंग कैटेगरी में आती है. कजन, रिमेंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जस्ट टू बी श्योर अबाउट इट. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Cousins are not considered as siblings. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, cousins are not siblings. ठीक है, okay, let's move on. Now if we have to show a parent child relationship, that means A, single vertical bond, B. This means A is parent of B, or I can say B is child of A. Child of A. Now अब यहाँ पे हमें एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि मैंने आपको जितने भी आपको यहाँ पे डेटा बताए, ये जितने भी आपको मैंने यहाँ डेटा बताए, इनमें मैंने किसी का भी जेंडर रिवील नहीं किया अभी फिलहाल कि कौन मेल है कौन फीमेल है, राइट? बट यस, double bond means they are married, single bond means they are siblings, vertical single bond means one is the above person is parent and the below person is child. Okay, सो सिंस मैंने यहाँ पे कोई जेंडर रिवील नहीं किया अभी इस इन रिलेशंस में, सो यू कैन नॉट से हु इज मेल हु इज फीमेल. एंड ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा. जब तक आपको क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि हु इज मेल हु इज फीमेल, प्लीज डोंट थिंक कि अरे किरण नाम तो मेल का होता फीमेल का होता तो लेट्स कंसीडर किरण इज अ फीमेल. अरे सूरज नाम तो मेल का होता है, लेट्स कंसीडर सूरज एज अ मेल. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, in question, if it is not mentioned or if you cannot identify surely whether the person there is a male or a female, don't put the sign of male or female. Okay, you can simply say cannot be determined. Okay, but जब तक आपको फैक्चुअली तो जब तक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पता ना हो तब तक आप साइन ना लगाइए. ये गलती बहुत करते हैं हम. नाम देख के, मान लीजिए हमने नाम देखा जसप्रीत, अब जसप्रीत हमको लगता है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट किसी को लगा नहीं मेल ही है तो उसने मेल लगा दिया. संजय, संजय नाम इज मेल, इन जनरली इट्स अ मेल नेम, बट लोग क्या करते क्या कहेंगे, चलो मेल लगा दे प्लस लगाते हैं. बट अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है उसको आप प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है वर्डिंग्स की. ये तो चलिए बेसिक हो गया. अब इसके बाद आते हैं वर्डिंग्स की. लेट मी राइट टू सेंटेंसेस ओवर हियर. ओके, ए इज son of B and father of C. Okay, and let me write another sentence. A is son of B who is father of C. इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर हम गौर करें तो हमारे पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक चीज का फर्क है. और मेरे ख्याल से यस, आई गेस आप लोग पकड़ लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पे एक एंड का फर्क है और यहाँ पे एक हु का फर्क है. बट इस एंड और इस हु के कारण सेंटेंस में मीनिंग बदल जाती है. लेट्स सी कैसे. अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूं
See, for the people who know Hindi or whose local language or the कॉमन लैंग्वेज और इज नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, वो हिंदी में ट्रांसलेट करे. आपकी कोई और लैंग्वेज है, योर नेटिव लैंग्वेज इज मलयालम, तमिल और एक्स वाई जेड, यू कैन कन्वर्ट इन दैट लैंग्वेज. ओके, with the and the English is basically the base of communication, so we'll be mostly doing the questions in English. Okay, चलिए, और उसके साथ साथ मैं थोड़ी हिंदी बोलूंगा बिकॉज हिंदी इज माई नेटिव. सो आप इंग्लिश के साथ साथ अपने नेटिव में भी उसको ट्रांसलेट करके क्वेश्चंस को पे अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स गो. ए इज द सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी. तो दैट, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंड जो होता है वो हमेशा अपने से दूर वाले पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन था, उसको डिफाइन करता है. सो अगर मैं यहाँ पे चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन्स बी इज पेरेंट एंड ए इज सन ऑफ बी, दैट मीन्स ए यहाँ पे नीचे आ गया. ए का जेंडर में पता है, हम यहाँ पे ए के ऊपर प्लस लगा देंगे. एंड फादर ऑफ सी, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो फादर ऑफ सी. So in this scenario, the chart will look like this. Okay, A is son of B and father of C. But when we go to this sentence, the sentence will be is A is son of B, who is father of C. That means B is the parent of A being the son of B, and who is father of C. That means this who defines the person next to the word, that is B. Who is father of C. That means B is also the father of C. That means A and C are siblings. अब यहां से अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में वापस जाता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या क्या पता लगा, यहाँ पे मुझे ये पता लगा that A is son of B and A is father of C. That means C is the grandchild of B और B is the grandparent of C. Right? यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि B जो है एक C का ग्रैंड पेरेंट है. राइट? और अगर मैं सी से ए की तरफ देख बी की तरफ जाऊं तो मुझे पता लगता है कि सी इज दी ग्रैंड चाइल्ड. अब वो ग्रैंड चाइल्ड वो पोता या पोती हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट वो दादा या दादी हो सकता है, नाना या नानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सी इन हिंदी इट्स लाइक, अगर फादर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स है तो हम दादा दादी कहते हैं, मदर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स को नाना नानी कहते हैं. बट इंग्लिश इट्स ऑल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. यस, one thing which you can do is, if the relations are from the father side and let's say कि वो आपके चाचा हैं, right? So technically in English it would be uncle, but to be more precise you can write paternal uncle. Okay, अगर आपका वही पर्सन मदर साइड से आते हैं, मदर साइड से, ठीक है, अगर वही पर्सन आपके मदर साइड से आते हैं और वो आपके लेट से कि मामा है, तो मामा विल बी मेट अंकल, और टू बी मोर प्रिसाइज मैटरनल अंकल. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द दिस क्वेश्चन. ओके, सो ए इज सन ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी. तो यहाँ पे अब हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि ओके बॉस, बी इज फादर ऑफ ए, बी इज ऑल्सो द फादर ऑफ सी, and A and C are basically what? A and C are siblings. Yes, that's right. But we don't know the gender of C. We can say A is the brother of C, and we can say C is the sibling of A. We cannot say C is the brother of A or C is the sister of A, because हमें C का gender नहीं पता है. So this is one of the most important thing which you have to understand. Okay, which you have to take care that okay how the language is written over here. Okay, and most of the time let's say कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, so आप उसको अपनी लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए, अपने आप को उस पोजीशन में रखिए जिसके बारे में डेटा पूछ रहा है, एंड देन यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ. नाउ these two are cases we have to understand. Okay, let's say B is brother in law of A,
राइट, बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। नाउ इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि बी इज मेल married to a certain person or obviously a female, and A is the sibling of this person. Okay, so that technically B will become brother-in-law of A, right? Okay, that's fine. Now इसी का उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा ये हो सकता है that B is a male, okay, whose brother or sister, let's say, let's first take the case of brother, whose brother is married to A. So technically again B is the brother-in-law of A, or the scenario could be B is a male whose sister is married to A. Okay, so A B is the brother-in-law of A. So these are two scenarios जहाँ पे ये brother-in-law या similarly sister-in-law का भी केस आ सकता है. So we have to be sure about it. Okay, कि brother-in-law क्या है, sister-in-law क्या है. ठीक. अच्छा, आजकल आपको, वैसे तो मैंने बहुत कम देखे, बट अगेन अगर कहीं आपको SIL लिखा मिल जाए, MIL लिखा मिल जाए, FIL लिखा मिल जाए, सो नीड नॉट टू वरी गाइस, इट्स बेसिकली सिस्टर इन लॉ, इट्स मदर इन लॉ, इट्स फादर इन लॉ. ओके, कई बार इन शॉर्ट में ये भी लिखा कहीं ना कहीं मिल सकता है. इंडिया में तो अभी फिलहाल ऐसे नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस, बट मे बी इफ यू गिव अ एग्जाम ऑफ एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड दैट कंपनी अगर वो फॉरेन में है या फॉरेन के लिए आप जॉब अप्लाई करें, तो हो सकता है वहाँ पे instead of writing in detail वो SIL, MIL, FIL भी लिख सकते हैं. Okay, so need not to worry about it. SIL is sister-in-law, MIL is mother-in-law, FIL is father-in-law. Okay, so this is the thing. Okay, so let's move on. Okay, let's move on. Let's try to build another chart. Okay, now let me write over here कि A is mother of R, F is brother of A, and daughter of, sorry, not daughter, my bad, not daughter, how can it be daughter? Okay, sorry, F is brother of A. ठीक है, तो क्वेश्चंस क्योंकि मैं अभी तुरंत तुरंत आपके सामने बना रहा हूँ. 16 A is mother of A, F is brother of A, and let's say father of Q. Okay, so let's try to make the chart of this data. Okay, let's see कि क्या चार्ट बनता है. A is the mother of R, that means A is the mother of R, तो वर्टिकल में R नीचे आ जाएगा. F is the brother of A, F is the brother of A, and father of Q, and then F is father of Q, right? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड Q, तो मैं यहाँ उसको कहूंगा कि ओके, R एंड Q आर कजन्स, राइट? ओके, अगर कोई मुझसे, अब यहाँ पे अगर मैं, चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसका मैंने आई गेस आपको आंसर पहला दे दिया है. लेट्स से कि इसको पहला क्वेश्चन हो गया कि रिलेशन बिटवीन R एंड Q, so that's the first answer, cousin. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहीं पे पूछता हूं, हाउ इज F related to R? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज F रिलेटेड टू R. अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो F कौन लगा या लगी R का, या F का क्या रिश्ता है R से, राइट? तो हम यहाँ देखेंगे F का जेंडर हमें यहाँ पता है, ठीक, और R को हम यहाँ देखेंगे तो F की बहन का बच्चा. तो अगर इसका मतलब
अगर एफ की सिस्टर का वो चाइल्ड है, दैट मीन्स एफ उसका क्या लगा? द आंसर वुड बी अंकल. यस, दैट्स राइट, अंकल. ओके, यहाँ भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर, में वो एफ का रिलेशन आर से देने की बजाय आर का रिलेशन एफ से दे देते हैं. अगर लेट्स से कि यहाँ पे आर का के ऊपर प्लस लगा होता, लेट्स से, तो यहाँ पे आर के ऊपर प्लस, तो आधे बच्चे हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर में नेफ्यू लिख देते, जबकि ऐसा नहीं है, एफ क्या लगा आर का. ओके, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने ये चार्ट देखा, पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ एफ एंड देन आइडेंटिफाई, ओके यू हैव अ सिस्टर एंड दैट सिस्टर हैज अ चाइल्ड, सो टेक्निकली how what you will be to your sister's child, so to your sister's child you will be uncle. Okay, so that's the answer. Okay, so guys, ऐसे ही हम ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, पहले मैं डेटा के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड वंस वी आर डन विद दैट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड टाइप, दैट इज वन लाइनर्स. ओके, so for now, this is it, and we'll be meeting in next class. Thank you for now, and hope you enjoyed my video, and if you like it, do share and subscribe. और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, इसके साथ साथ जो मैथ्स की सीरीज चलती हैं वो तो चलेगी. ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.